So on a new page, people are supposed to put the heading assurance for profits to the firm as well as to the partner. Taking an example, there are four partners, W, X, Y, and Z, sharing profits and losses in the ratio of 4:3 is to 2 is to 1. The partner, Mr. X, gives the promise to the firm that anyhow, minimum amount of net profit that the firm would be earning will not be less than what is called as 40,000 rupees. Heard this well? Yes. कि 40,000 से कम का प्रॉफिट तुम्हारा मिस्टर एक्स ने प्रॉमिस किया तुम्हारी फर्म को कि इससे कम प्रॉफिट नहीं होगा. Now there could be two conditions. Condition number one, profit, what the firm has actually earned, the net profit basically. It could be say 50,000 rupees. No problem. जैसे accounting हम करते थे, as usual things will go on. But if the firm earns a profit of say 36,000, whereas Mr. Y promised, sorry, X promised it to be not less than how much, children? 40,000 rupee. What is the deficiency that we observe? 4,000. This 4,000 will be borne by the partner who has promised it. So partner, until unless makes such contribution in the business, is a debtor, and this would be added to the net profits that are transferred to PL appropriation account. So while preparing PL appropriation account, we write on the credit side by profit and loss account, net profit brought down. That posting would be done in the usual manner, and 4,000 rupee would be further credited with this journal entry, that is by excess capital or current account. Heard and understood this, everybody? Yes, sir. But when promise is given to the partner or partner's children, suppose X gives the promise to Y, might be possible that X, Z, and W, they have given the promise to Mr. Y. Might be possible W and Z have given the promise to Mr. Y, that in any case, minimum profit out of the divisible profit for your share would not be less than say 10,000 rupees in an year. Divisible profit 10,000 से कम तुमको नहीं मिलेगा. डिवाइड किया हम सबने प्रॉफिट को, और मिस्टर वाई का जो शेयर आ रहा है चिल्ड्रन, ही इज गेटिंग लेट अस से 15,000 रुपीज. नथिंग टू बी डन. जैसे चीजें चल रही हैं वैसे ही चलेंगी. बट इफ हिज शेयर which was promised to be 10 lands up to be only 8,000 rupee, आपको कितना promised amount से कम value नजर आ रहा है? 2,000 rupee. Children, this 2,000 rupee is called as deficiency, and this would be borne by whom? If it is promised by Mr. X, X would bear. If it is promised by W and Z, these partners would bear. If it is promised by W, X and Z, these partners would bear. इसकी simple सी definition है. The first one, where you happen to see only Mr. W and Z, you call it as guarantee by partners. Where it is only Mr. X, we call it as guarantee by partner. And where there are all three children,
we call it as what? Guarantee by the firm. I repeat children, you call it as guarantee by the firm. इतनी बात सबको समझ में आ गई? These partners who give the assurance, जो चौधरी बनते हैं बेसिकली, इन्हें क्या बोला जाएगा एंड वाई को क्या बोला जाएगा? द पार्टनर हु गिव्स द प्रॉमिस कि इससे कम प्रॉफिट तुम्हें नहीं मिलेगा, दे आर कॉल्ड एज guaranteeing partners. And to whomsoever we have given the promise, children, they are called as guaranteed partner. Many doubts to anybody? समझ में आ गया? Yes, sir. So the entry would be what, sir? In the first case आप क्या एंट्री करेंगे, in the second case आप क्या एंट्री करेंगे, और यहाँ पे आप क्या एंट्री करेंगे? एकदम सिंपल है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. So when W and X happens to promise, it's W's capital or current account debit, as well as with W, the other one who promised was Z, to what is called as Y's capital or current account. 2000 रुपये को सर डिवाइड कैसे करेंगे हम? ये भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है आपके लिए. प्रॉमिस किया था W एंड Z ने, तो W और Z का शेयर चिल्ड्रन 4:2 है, दैट इज 2:1. सो 4:2 W और Z, सॉरी 4:1, सॉरी. तो 2000 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, फैक्टर आएगा 400 का, 1600 and 400. People understood this? कैसे हमने एंट्री पास की? चलन अंडरस्टूड द एंट्री, कैसे हमने एंट्री पास की है? Yes, sir. चलिए. एंड अगर सर मान लीजिए सो कॉल्ड मिस्टर एक्स ही बस प्रॉमिस कर रहे हैं, तब एंट्री क्या होगी? तब एंट्री सो कॉल्ड सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट करेगी मिस्टर एक्स को, एंड एक्स ही पूरा का पूरा 2000 बेयर करेगा. सो एंट्री वुड बी सेम, X's capital or current account debit to Y's capital or current account. Any doubts? Many doubts? No, sir. Entry well understood by all? Yes, sir. पक्का? कोई डाउट तो नहीं किसी? चलिए. एंड देन जब ये तीनों लोग बेयर करेंगे तो एंट्री क्या होगी? अगेन कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जो भी चौधरी बनेगा आप उसे डेबिट करेंगे, एंड अल्टीमेटली जितना भी जिसे बेयर करना है, इट वुड बी ईदर एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको वॉयलेंट होने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का है, वी विल बी पुटिंग दैट. सो इट वुड बी एक्सेस कैपिटल ऑल्सो डेबिटेड, डब्ल्यू तो डेबिट हो ही रहा था, वाई को हम क्रेडिट कर देंगे चिल्ड्रन, क्योंकि Y is the partner to whom such promise is being made. अब आप 4:3:1, I repeat children, 4:3:1 में इसे डिवाइड कर देंगे, तो 4 + 3 + 1 8 होता है. 2000 divided by 8 is what children? 2000 divided by 8 is what? 250. 250 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 आएगा, एंड इन दोनों के लिए आ जाएगा 500 and 500. सॉरी 750 and 250, सॉरी मेरे को लगा वो सेम था. चलिए. सो पीपल अंडरस्टूड कैसे आपको एंट्री करनी है. बट प्रॉब्लम बच्चों एंट्री करने में नहीं है, प्रॉब्लम आपको कहां पे आएगी? व्हाइल पोस्टिंग देम इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. आप पोस्टिंग कैसे करेंगे? आप क्रेडिट साइड में बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, कमीशन, सब कुछ जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे. देयर आफ्टर फॉर द पार्टनर मिस्टर डब्ल्यू आप लिखते थे प्रॉफिट टू डब्ल्यूज कैपिटल. अगर इसने कुछ बेयर किया है तो आप डेफिशिएंसी बॉन्ड माइनस कर देंगे. टू सो कॉल्ड एक्सेस कैपिटल भी आप ऐसे ही करेंगे, जेड भी ऐसे ही करेंगे,
और y के लिए क्योंकि डेफिशिएंसी बेयर की गई है तो आप ऐड करेंगे जिससे जिससे भी इसने रिकवर किया है, तो इट इज डेफिशिएंसी रिकवर्ड, डेफिशिएंसी रिकवर्ड। समझ में आ गया हाउ द पोस्टिंग वुड बी डन इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? चिल्ड्रन, कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. पक्का? सो द फैशन ऑफ डूइंग द जर्नल एंट्री इज टोटली डिफरेंट एज फ्रॉम द लेजर पोस्टिंग इट इज टू बी डन। चिल्ड्रन, तो बच्चे कभी कभी जर्नल भूल जाते हैं, लेजर ठीक करते हैं, कभी कभी जर्नल ठीक करते हैं, लेजर भूल जाते हैं। दोनों का कोई आपस में मैच नहीं है, दोनों एकदम अलग अलग चलते हैं। गॉट इट? चलिए अपडेट दिस क्विकली चलते हैं। While preparing capital account, people are super aware of what is called as contra journal entry। चिल्ड्रन, अगर आप इस एंट्री को देख लें तो आप लिखेंगे x के कैपिटल अकाउंट में 2y और y में लिखेंगे बाय x। समझ में आ गया? और अगर इस एंट्री को देख लें सर तो डेबिट साइड में यू विल राइट 2y's कैपिटल इन द कॉलम ऑफ w, इन द कॉलम ऑफ x, इन द कॉलम ऑफ z, these circled values। क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय बबलू का बाय w, बाय x, बाय z, z के कॉलम में तीनों वैल्यूज लिख देंगे तो टोटल वुड बी 2000। समझ में आ गई बात? पक्का? सब तो हो गया सर, पूरी रामायण खत्म हो गई, बट राम जी का नाम पूरा नहीं बताया किसी ने। सो व्हेन इट इज टाइटल्ड एज व्हाट इज नोन एज assurance of profit given to the firm, हम इसे बोलते हैं मिनिमम अर्निंग गारंटी। एंड जब पार्टनर्स की बात आती है कि पार्टनर्स को भाई मिनिमम प्रॉफिट अश्योर किया जा रहा है, तो वी कॉल इट बाय अ डिफरेंट नेम टाइटल्ड एज मिनिमम प्रॉफिट गारंटी। समझ में आई बात सबको? कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग समझ में आ गई? चलिए बी क्विक टू दिस, देन वी डू अ न्यूमेरिकल ऑन। लेट्स प्रोसीड ऑन टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन गारंटी। लेट्स सी, जरा मेरे को क्वेश्चन मिल जाए गारंटी पे, देन स्टार्ट करते हैं। बाय द टाइम पीपल कैन ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, और मैं सीक्वेंसिंग आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सीक्वेंसिंग पे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन, हम चार्जेस की एंट्री करते हैं। आई रिपीट, हम किसकी एंट्री करते हैं? चार्जेस की। चार्जेस के बाद डीड के जितने आइटम होते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद हम उनकी एंट्री करेंगे। देयर आफ्टर हम डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री करेंगे, और डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री करने के बाद हम एंट्री करेंगे गारंटी की। और अगर क्वेश्चन में अर्निंग गारंटी एंड प्रॉफिट गारंटी दोनों आ जाए, 100% आएगा नहीं, बट मान लीजिए, तो आप दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे, बिकॉज एक बार आप पार्टनर को क्रेडिटर बनाते हैं जब उसे पैसे मिलने हैं, और एक बार डेटर। मान लीजिए एक्स डबल ठेकेदार है, वो फर्म की भी गारंटी ले रहा है और पार्टनर की भी। तो फर्म की गारंटी ले रहा है, उसकी एंट्री अलग है, और पार्टनर की ले रहा है, उसकी एंट्री अलग है। फर्म की गारंटी ले रहा है, एंट्री एट द बिगनिंग करेंगे। पार्टनर की गारंटी ले रहा है, एंट्री एट द एंड होगी। तो वहां पे कोई भी क्लैश ऑफ क्लैंस जैसा गेम खेलने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? चलन, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. एंट्री का सीक्वेंस आई होप सो सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? चलिए जस्ट लेट मी गेट डाउन विद द क्वेश्चन। ये तो पास्ट एडजस्टमेंट है, जो हमारा सेकंड हाफ का टॉपिक है, सेकंड पार्ट का। गारंटी लगता है नाराज हो गया, नजर नहीं आ रहा है कहीं पे ठीक से। चलिए क्वेश्चन बना ही लेते हैं गारंटी का। जस्ट लेट मी सर्च आउट, फॉर्मेट बनाइए। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर व्हाट इज कॉल्ड एज 40th चिल्ड्रन। जर्नल भी बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जर्नल भी बना लेंगे, लेजर भी बना लेंगे, दोनों बना लेंगे, ऐसे थोड़ा लगने हैं। चलिए, so the question is Mukesh and Ramesh are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admit Rupesh for 1/4 share, और बोला गया है कि इसका प्रॉफिट किसी भी हाल में 55,000 से कम नहीं होगा, और 1,60,000 फर्म का प्रॉफिट है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक बहुत बड़ा एरर बताता हूं। ये क्वेश्चन है फंडामेंटल चैप्टर में, जहां पे बच्चे को पता ही नहीं होता कि ये 1/4 का ट्रीटमेंट क्या है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपको भी नहीं पता है, ज्यादा चौधरी मत बनिएगा, नहीं सर 2:1 है, 1/4 उसको दे दिया, 3/4 बचा, वगैरह वगैरह, ये कल की बातें हैं। तो हम पहले इसका 1/4 कैलकुलेट कर लें।
it would come to how much, children? 40,000. And what is the remaining share left? 120. इस 120 को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे, 2/3 फॉर मुकेश and 1/3 for Ramesh. So it would come to 80 and 40. Is that understood well by all? And इसको बोला गया है कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट किसी भी हाल में 55 से कम नहीं होगा. Is it said, children, that who has given the promise? No. तो जब कुछ ना लिखा हो तो मानेंगे कि दोनों ने नहीं, फर्म ने. थोड़ा पॉलिश्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करिए. सो कितनी डेफिशिएंसी इसकी आपको नजर आ रही है? 15,000 रुपीज. जिन्होंने फेविक्विक जूस पिया है उनको छोड़ के बाकी लोग बोल सकते हैं एटलीस्ट. गॉट इट क्लियर? सो 40,000 मिल रहा है, 55 मिलना चाहिए. डेफिशिएंसी इज 50. अब यहाँ पे तो अप्रोप्रिएशन बोला गया है, बट हम थोड़ा बंजी जंपिंग नहीं कर सकते, हम पंजी करेंगे. सो सबसे पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी बच्चों? चलिए, इट्स पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. वैल्यू चिल्ड्रन 160. Do we have anything like interest on loan, rent, manager's commission? No, sir. Had it been there, इसके पहले लिख लेते हैं. नहीं है तो नहीं करेंगे. Thereafter, children, हम सीधे divisible profit की एंट्री करेंगे. Among all three, entry would be PL appropriation account debit to Mukesh's capital, to Ramesh's capital, to Rupesh's capital. Method is not mentioned, तो by default हम assume करेंगे फ्लक्चुएटिंग. 160 को जब आप डिवाइड करेंगे तो इट वुड कम टू हाउ मच चिल्ड्रन? 80, 40 एंड 40. क्लियरली अंडरस्टूड? पक्का? चलिए. Thereafter we do the entry for sharing of deficiency. Who promised to Rupesh, children? Both. So जब तक ये पैसे दे नहीं देते, they are the debtors. और जब तक रुपेश को मिल नहीं जाता, ही इज द क्रेडिटर. सो 15,000 से क्रेडिटर होगा चिल्ड्रन. 2:1 में आप इसे डिवाइड कर देंगे तो दिस वुड कम टू 10 and 5. अंडरस्टूड वेल? पीएल अप्रोप्रिएशन की तरफ प्रस्थान करते हैं. आई होप सो सबने एंट्री कर ली होगी. चलिए, फर्स्ट एंट्री वुड बी पोस्टेड हाउ? बाय पीएल अकाउंट. Net profit brought down 160. Anything like interest on drawings, interest on capital, salary, commission वगैरह वगैरह? No. So simply we'll be putting to Mukesh's capital, inner column children 80,000 less deficiency. Bond की स्पेलिंग पूरी लिखिएगा, BORNE, नहीं तो लगेगा पैदा हुई डेफिशिएंसी. It's 10,000 विद इन ब्रैकेट्स, थोड़ा देखने में बढ़िया लगे, ठंडी का माहौल भी है. 70 टू रमेश कैपिटल, इट्स 40,000 लेस डेफिशिएंसी बॉन्ड. हाउ मच? 5,000. एंड चिल्ड्रन, हु इज गेटिंग दिस प्रॉफिट? टू रुपेश कैपिटल अकाउंट क्या है वैल्यू? 40,000. एड डेफिशिएंसी रिकवर्ड. एक साथ ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. 15. और अगर आप डायरेक्टली लिखेंगे टू मुकेश कैपिटल, टू रुपेश कैपिटल और उसमें वैल्यू लिख दें डायरेक्टली चिल्ड्रन 70, 35 एंड 55, दैट वुड पोस्ट टू बी अ रॉन्ग पोस्टिंग. व्हाई? फुल डिस्क्लोजर वोंट बी सीन देयर. तो वो गलत है. तो इट्स 1,60,160. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आईएससी और सीबीएसई, एनी एग्जाम. मैक्सिमम 3 marks to 4 marks children. Either journal or PL appropriation would be asked. In CBSE ज्यादा probability है PL appropriation की, ISC दोनों पूछता है. समझ में आगे बच्चों how we did this? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था. अब थोड़ा सा टिपिकल और टेक्निकल वाला करते हैं, ठीक है? 39th आपको वेल विजिबल होगा. It says Amal, Bimal and Deepak are partners in a firm. कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस 1 अप्रैल को दिए गए हैं. सर आप इससे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? मेनी अ टाइम्स आपको क्वेश्चन बता देगा क्लोजिंग का कैपिटल, और वो बता देगा कि गड़बड़ी क्या हुई है, तो पहले आपको उसको ओपनिंग करना पड़ेगा. अब ये मत बोलिएगा सर ये तो पास्ट एडजस्टमेंट में होता है. आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आया होगा, बट हो कहीं पे भी सकता है ये. ओके,
So 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh capital है. Profit sharing ratio is 5:3:2. They should get interest on capital at 10%. Salary मिलेगी बिमल को and दीपक को 2,000 per month and 3,000 per quarter. बिमल share of profit कितना होना चाहिए? Without interest on capital, but salary जोड़ के कम से कम 50. अगर 50 नहीं होता तो हम डेफिशिएंसी का जिक्र करेंगे. और कौन बेयर करेगा डेफिशिएंसी? दीपक. समझ में आया कि नहीं? So who is responsible for whom, children? दीपक is responsible for बिमल. समझ में आ गया? एंड फर्म का प्रॉफिट कितना है? 2 लाख. इज दिस अंडरस्टूड वेल? चलिए डायरेक्टली प्रिपेयर करते हैं चिल्ड्रन, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. व्हाट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लीजिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का. What is the journal entry for transferring net profit to PL appropriation account? Very good. PL account debit to PL appropriation account. So we'll be putting by PL account within brackets net profit brought down, and many a times ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है ये गड़बड़ होगा ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी वगैरह वगैरह, कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में कल बताया था. एनीथिंग विच हैज रिड्यूस्ड आवर प्रॉफिट्स ऐड बैक कर दीजिए. एनीथिंग विच हैज इंक्रीज्ड आवर प्रॉफिट्स सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. चाय में ज्यादा चीनी डल गई, ऐड वाटर और मिल्क स्वाद अनुसार, हैसियत अनुसार. व्हाट इट क्लियर? चाय में चाय पत्ती कम डलिए और ऐड कर दीजिए, बट बॉईल करना मत भूलिएगा. तो उसके बाद सीधे आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर अली, बिमल एंड दीपक. 10% of 4 lakh is 40,000. 10% of 3 lakh is 30,000, and 10% of 2 lakh is 20,000. Total is what, children? 90,000. Salary is to be given to 2 persons, 2 partners. To whom, children? बिमल एंड दीपक. 2,000 पर मंथ है बिमल की, तो 24,000, एंड फॉर दीपक इट इज 3,000 पर क्वार्टर. 3 4s are 12. Total is how much, children? 36. So 2 lakh is your profit. 90 and 36 is 126. What is 2 lakh minus 126? 24,000. 24. 74,000, sir. It's Ali, Bimal and Deepak. Profit sharing ratio is 5:3:2. 10 से डिवाइड करेंगे 7,400 का फैक्टर आ जाएगा. Here it is 14,800 if I'm not wrong. 7 3s are 21, 23,200 चलन. और 74 5 7s are 35, 37,000. Please cross check this. Have I calculated them correctly or not? So minor correction कर लीजिएगा. 22,800 है, by mistake I wrote it earlier as 23,200. तो 22,200 कर दीजिए. सॉरी, समझ गए? Yes, sir. कितना हमारे बिमल भैया को बोला जा रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ के और सैलरी जोड़ के प्रॉफिट मिलना चाहिए. सो चिल्ड्रन इसका 24 तो यहाँ पे हो गया सैलरी, और 22,200 यहाँ पे हो रहा है, 46,200 हो रहा है. बट मिलने की बात क्या हुई है? 50. कितनी इसकी डेफिशिएंसी है? 3,800. हु इज गोइंग टू बेयर? दीपक. तो दीपक के प्रॉफिट में आप लेस कर देंगे. एंड सो कॉल्ड ऐड किस में करेंगे चिल्ड्रन? बिमल में. खोपड़े में बात गई? Yes, sir. So we'll putting to Ali's capital account. प्रॉफिट की वैल्यू इसकी तो सेम है 37,000. टू बिमल्स कैपिटल अकाउंट, इसका प्रॉफिट का शेयर आ रहा है 22,200 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इसी में आप ऐड करेंगे what is called as deficiency recovered. How much? 3,800. Total is 26. 26,000. समझ में आ गई बात? टू दीपक्स कैपिटल अकाउंट,
to Deepak's capital account. इसका प्रॉफिट था चिल्ड्रन हाउ मच 14,800 minus deficiency bond 3,800 should be in brackets. Total is 11,000. People understood this? Okay. So let's proceed on to one important concept जिस पे लोग गलती कर देते हैं कभी कभी. प्रॉफिट गारंटी में चिल्ड्रन मेनी अ टाइम्स आपको ऐसा लिख के मिलेगा 10,000 रुपीज पर एनम से कम उसका प्रॉफिट नहीं होगा. 10,000 पर एनम. और क्वेश्चन आपको नेट प्रॉफिट हाफ ईयर का देता है. तो अगर 10,000 पर एनम है तो हाफ ईयर का कितना होना चाहिए 5. और उस बेचारे को ऑलरेडी 6 मिल रहा था. आपने सोचा 4,000 की डेफिशिएंसी है. 10,000 पर एनम है तो हाफ ईयर का कितना हुआ 5. और 6 जब उसको ऑलरेडी मिल रहा है तो गारंटीड से तो ज्यादा ही मिल रहा है ना. तो इसमें गलती मत करिएगा. तो ये हाफ ईयर वाला क्वेश्चन तो बुक्स में भी होता है. तो अब बोर्ड ये नहीं पूछेगा. अब बोर्ड आपको क्वार्टरली करके पूछ लेगा क्योंकि उनको पता है कि आप कौन सी चक्की का आटा खा के आए हैं. तो वो आपको बाजरे की रोटी खिलाएंगे और आपसे पूछेंगे बताओ कौन सी चक्की का आटा है. आप बोलेंगे नन ऑफ दीज. ये आटा है ही नहीं है, बाजरा है बेसिकली पिसा हुआ. आटे वर्ड का मतलब व्हीट का फ्लोर. जनरली हम ऐसा ही मानते हैं. ठीक, चलिए. तो सबको ये बातें समझ में आगे चलन. Yes, sir. का चलिए. सो मैं भूल गया था आपको बताना एक पर्टिकुलर टॉपिक लास्ट क्लास में. तो मैं क्या कर सकता हूं चिल्ड्रन, उस लॉस की भरपाई मैं कैसे कर सकता हूं अगली क्लास में पढ़ा दूंगा. इस जन्म में कुछ काम अधूरे रह गए थे तो कब पूरे होंगे अगले जन्म में. तो वैसे ही पार्टनर्स ने 31 मार्च 22 को जो ईयर एंड हुआ कुछ चीजें बेचारे भूल गए. क्या फिर से बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपन होंगी? नो. So correction of previous error will be done in the subsequent year. Such subsequent year में किया गया last year का correction या editing is known as past adjustment. Past adjustment के question में बच्चे गलती क्यों करते हैं? मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं आपको कि past adjustment होता क्या है. आप सब कुछ कर लेते हैं बट भूल जाते हैं. अरे गेट तो ताला लगाना भूल ही गए. सवेरे जब उठे तो याद आया. अच्छा हुआ चोर लोग शादी में गए हुए थे, नहीं तो आपके घर पे ही आते गेट का ताला भी खुला था. अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? तो नेक्स्ट ईयर जब आप लास्ट ईयर के एरर रेक्टिफाई करेंगे तो एक बात बहुत ध्यान देनी है. कोई भी गड़बड़ी हुई हो चिल्ड्रन, कोई भी आपके डिविजिबल प्रॉफिट पे इफेक्ट जरूर आया होगा. खोपड़े में बात गई. दूसरी बात, कैसा भी क्वेश्चन आपको पास्ट एडजस्टमेंट का मिल जाए चिल्ड्रन, आपको लॉजिक याद है? क्या लॉजिक हम अप्लाई करते थे? स्क्रीन मस्ट बी विजिबल टू एवरीबडी. हम लॉजिक अप्लाई करते थे कि कौन कौन सी चीजें हमें रियलिटी में पार्टनर्स को देनी है. इट कुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वसूलना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कमीशन एंड डिविजिबल ऑफ प्रॉफिट. डिविजिबल प्रॉफिट यहीं पे आप गड़बड़ी करेंगे. और गलती हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कमीशन या डिविजिबल प्रॉफिट में कितनी की, उन दोनों का डिफरेंस क्या आया. ये बोलना बड़ा आसान लगता है बट जब क्वेश्चन करता है बच्चा सब गड़बड़ कर देता है. क्यों? क्योंकि बच्चा अपना दिमाग चलाना बंद कर देता है. आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि आपके पीएल अप्रोप्रिएशन में कौन सी चीज कहां आती थी. क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एक स्ट्रैटेजी सेट करनी पड़ेगी. और मैं एक टेक्निक बता रहा हूं, कैसा भी क्वेश्चन है इस टेबल से तो सॉल्व हो ही जाएगा, पक्का हो जाएगा चिल्ड्रन. बट देन टू अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों उसको टी अकाउंट बना के करिएगा. कंफर्मेशन ऑफ द आंसर वहीं से मिलेगा. और नॉर्मल क्वेश्चन को भी करने के बाद अगर काफी ढेर सारी चीजें हैं तो आप गलती नहीं करेंगे. आप गलती कहां पे करेंगे? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सिर्फ सो कॉल्ड एक दो पैरामीटर्स आ गए. बड़ा क्वेश्चन आया तो कभी गलती नहीं होती है क्योंकि बड़े क्वेश्चन में हमेशा क्या लिख के आता है? 4-5 चीजें अग्रीड थी, सब भूल गए. तो जब सब भूल गए तो आपने क्या दिया होगा? सिर्फ प्रॉफिट. तो छोटे क्वेश्चन में आप जैसा स्टूडेंट गलती करेगा, बड़े क्वेश्चन में आप गलती करेंगे ही नहीं. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो दो बातें याद रखिएगा. कैसा भी क्वेश्चन आए, थोड़ा सा भी हेजिटेशन हो कि गड़बड़ी है, टेबल बना के देख लीजिए. 1% चांस लग रहा है सर या 0.1% लग रहा है, देयर कुड बी एन एरर, आप टी बना के फटाक से चेक कर लीजिए. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? Yes, sir. कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी? ओके.
बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन कभी भी आए बच्चों, डोंट टेक रिस्क, हमेशा टी बना के ही सॉल्व करिएगा। फाइन, चलिए। सो ये टेबल सबके पास होगा, तो नो नीड टू रीड्रॉ इट अगेन, वी गो ऑन टू द क्वेश्चन। तो सबको ये बात समझ में आ गई कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सही वैल्यूज क्या थी। सर जरूरी है सबसे पहले लिखना है? नो नो नो, आप बाद में भी लिख सकते हैं, रॉन्ग वाले को आप पहले लिख दीजिए। तो करेक्ट क्या होना चाहिए था एंड रॉन्गली क्या हो गया, याद रखिएगा, देयर विल ऑलवेज बी द इफेक्ट ऑफ योर मिस्टेक्स ऑन व्हाट, समझ में आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट। चलूं आगे, पक्का? चलिए, तो यहाँ पे आपको देख लें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला क्वेश्चन अगर नहीं है तो एक मैं बनवा के करवा दूंगा। चलिए, तो पहले छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, चलो, और फिर बड़े क्वेश्चन पे आएंगे। तो वेरी क्विकली एक जरा आप चार्ट बनाइए। लेट मी गेट डाउन टू द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दो बातें मिल जाएंगी एक साथ। पास्ट एडजस्टमेंट तो है ही है चिल्ड्रन, वी हैव गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स एज वेल। सो वर्किंग नोट का फॉर्मेट आई होप सो सबने ड्रॉ कर लिया होगा। हाउ मेनी पार्टनर्स डू वी सी हियर? 3 पार्टनर्स, नेम देम। A, B and C. So question simply says what? Question says the partners have distributed the profit for the firm for the year ended 31st March 2003 75,000 in the ratio of 3:2:1, और इनमें से एक भी चीज को इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। सो फॉर्मेट में आप पहले A, B, C एंड टोटल लिख लीजिए, और सबसे पहले हम प्रॉफिट्स का जिक्र करेंगे। ओके, सो स्टार्ट पुटिंग इट फास्ट चिल्ड्रन, start putting it fast, and you will put it like this. Amount already credited as divisible profits. सो मिस्टर ए को कितना अमाउंट मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा? लेट्स सी 75,000 को 3:2:1 में डिवाइड कर देते हैं। 37,500 वुड बी फॉर मिस्टर ए, फॉर बी इट वुड बी चिल्ड्रन 25,000 and for C it would be 12,500 and total is 75,000. Is this much understood well by all? यहाँ तक कोई डाउट चल किसी को? No. Because it is a single value, तो हम टोटल लिख के अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, and then we'll be putting Roman 2 those things which we have forgot to give. अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम डिविजिबल प्रॉफिट की भी फंसेगी, बट मैं उसको बता दूंगा आपको कैसे लिखना है, तो नॉट टू वरी एट ऑल। अमाउंट्स which should be provided as, क्या क्या हम भूल गए चिल्ड्रन? First and foremost, salary. How much to A and how much to B? Simple as that. For C, is there any salary? No. What's the total, children? 6,000. After salary, commission is only to Mr. B, 5,000. Total is, children, again 5,000. अब बोला गया है गारंटीड प्रॉफिट मिनिमम 30A को मिलना है। अब थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट और अकल लगा के लिखना है, क्योंकि अगर ए का प्रॉफिट ऑलरेडी 30 से ऊपर है चिल्ड्रन, क्या हम 30 पे रोक देंगे उसको? आंसर चिल्ड्रन, क्या 30 पे आप रोक देंगे इसको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादा तो आप ज्यादा देंगे। थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, अगर पीएल अप्रोप्रिएशन बनता चिल्ड्रन तो क्रेडिट में 75 होता,
आई रिपीट चिल्ड्रन, क्रेडिट में 75 होता और डेबिट साइड में 6 एंड 5 11 होता। क्या आता आपका डिविजिबल प्रॉफिट इसके बाद? 64। और अगर 64,000 को आपने करेक्ट पीएसआर 3/8, 3/8 एंड 2/8 में डिवाइड किया होता, दिस वुड हैव बीन हाउ मच? 24, 24 एंड 16। तो भाई ए का प्रॉफिट तो 24 आ रहा है और हमें कितना देना है? थैंक गॉड, चैन की सांस लीजिए, आप सीधे 30 लिख सकते हैं। बट अगर ज्यादा आ रहा होता, लेट अस से इंस्टेड ऑफ 24 इट वुड हैव बीन कमिंग 34, तो इस पॉइंट का हमारे लिए क्वेश्चन में कोई मतलब ही ना होता। तो आप यहाँ पे डॉट 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 लगा के लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, ए की वैल्यू हाउ मच? 30 एंड टोटल आपका प्रॉफिट कितना आएगा चिल्ड्रन? तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हुआ होता और ये दोनों चीजें डेबिट हुई होती। अब 64 में से 30,000 रुपी इज गिवन टू मिस्टर ए, करेक्ट चिल्ड्रन? कितना बचा? 34। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? बी एंड सी, 3:2 में। So 34,000 rupee would be divided and this would be divided in the ratio of 3:2. B को मिलेगा 20,400 and children C को कितना मिलेगा? 13,600। समझ में आ गया कैसे डील करना है प्रॉफिट गारंटी को? यहाँ पर थोड़ी मजबूरी बन जाती है टोटल लिखने की, बिकॉज वी हैव मल्टीपल वैल्यूज। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रिंग रहा होगा, सर हैड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बीन हियर तो क्या करते? दो बातें याद रखिएगा, जैसे सैलरी कमीशन डिविजिबल प्रॉफिट लिखा है, बीच में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते और वैल्यू ब्रैकेट में होती, और ये 64 निकालते टाइम 75 में उसे ऐड करते, फिर इन दोनों को माइनस करते हैं। ओके, क्योंकि वो ऑपोजिट आइटम है। सो टोटल मिस्टर ए को कितना मिलना है? 33, इट्स 28,400, इट्स 13,600 और ये 75 आएगा। नाउ वील बी कैलकुलेटिंग व्हाट चिल्ड्रन? डिफरेंस। 37,500 रॉन्गली मिल गया, सही मिलना था 33, तो इसको 4,500 चिल्ड्रन एक्सेस मिल गया। मिलना था 28,400, मिला 25, 3,400 शॉर्ट। मिलना था 13,600, मिला 12,500, 1,100 इसे भी मिला है शॉर्ट। तो जिसे शॉर्ट मिला है उसे क्रेडिट कर दीजिए और जितना एक्सेस मिल गया जिसको उसे डेबिट कर दीजिए। आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? गलती अगली बच्चा यहीं पे करता है, गलती से आप रट लेते हैं एट ऑल टाइम्स, आप लिखते हैं कैपिटल 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 अकाउंट। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मेनी अ टाइम्स यू मे गेट चिल्ड्रन, आई रिपीट यू मे गेट कि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है। इन दैट केस इंस्टेड ऑफ कैपिटल वील बी पुटिंग व्हाट? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो गलती बिल्कुल भी सो कॉल्ड मंजूर नहीं होगी। समझ में आ गया? और अगर सर मान लीजिए इसके पास कैपिटल अकाउंट बनाने को पूछ लिया जाए, तो आज तक तो कभी पूछा नहीं गया, बट पूछ सकते हैं। यू कैनॉट से नहीं ये कोर्स में नहीं, ये नहीं आएगा, सब बकवास। आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यू विल बी पुटिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का, बी का एंड सी का जो भी कैपिटल दिया होगा यू विल पुट देम, और फिर कॉन्ट्रा एंट्री। डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल 3,400 एंड 1,100। क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय एज कैपिटल 3,400 एंड 1,100 एंड फाइनली यू विल डू द बैलेंसिंग। सबको समझ में आ गया हाउ वी डेल्ट दिस? पक्का? तो बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी गड़बड़ी में डिविजिबल प्रॉफिट को मत भूल जाइएगा। ओके चिल्ड्रन, बी क्विक। चलो, so children, next we'll have the revision for the topic called valuation of goodwill.
Those who have not taken the notes of this chapter, मतलब question bank आप आज लेके solve कर सकते हैं. I'll discuss the problems as well tomorrow. Okay, because questions थोड़े ज़्यादा हैं, तो आपको काफ़ी टाइम चाहिए होगा solve करने के लिए. They are more than 44 in number. कुछ तो छोटे मोटे हैं, 4-5 तो हमने कर ही लिए हैं, बाकी आपको करने पड़ेंगे. Okay, that's all for today.